सर चेक कर लो सर। ठीक है, ओके आई गॉट, थैंक यू। ठीक है, अभी स्टार्ट विद द, मतलब थोड़ा आपको रिफ्रेश कर देते हैं मेमोरी अबाउट द प्लेन एंड पैरेलल सीरीज। क्विकली विल गो, बाकी तो आपके पास नोट्स होंगे ही एंड प्लस आपने किया ही होगा, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी एंड इफ नीड बी यू कैन गो लिटिल in detail. Now, what is a rumb line? Can anybody tell me what is a rumb line? Let me click. Can anybody tell me? ये slide दिखाई दे रही है आपको? Can you hear me? I want interaction. Yes, sir. Yes, sir. Make the class interesting. I want you to interact. हमसे क्वेश्चन पूछिए, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, I will tell you again. But please interact. Don't remain quiet. जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, let me know. हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। मैं हर तरह से कोशिश करूंगा आप लोग। ओके, नाउ ऑन ए स्फीयर, व्हेन यू टॉक अबाउट स्फीयर, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? टेल मी। आपने 11th 12th में भी किया होगा। Yes, sir, near the poles, like shortest distance will be there. The shortest distance between 2 points. Shortest distance between 2 points. ये है आपका अर्थ है। हाँ, what is that? What we call it? Grid circle. We call it grid circle. Yes, sir. What is this? Okay. Yes, sir. And that appears as a straight line. Now see, grid circle cuts various meridians. If you're drawing a grid circle, when you draw a grid circle, it's not right. Suppose you draw a grid circle. ये ग्रेड सर्कल appear as straight line, ये straight line, सीधी लाइन है। तो it cuts the meridians at different angle. ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, ठीक है। और उसको आगे बढ़ाओ, सीधी सीधी लाइन जाएगी ऐसे। ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है। मेरिडियंस को एट डिफरेंट एंगल इट इज कटिंग, ठीक है। इट्स ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन गेट सर्कल जो the short is this. Rhumb line, when you say rhumb line is this line which cuts all the meridian at the, यदि ये बीटा है ये भी बीटा होगा, इस मेरिडियन पे ये भी बीटा है, ये भी बीटा, ठीक। तो it appears as a curve and it will eventually end up at the pole. It cuts all the meridian. Mercator chart में क्या होता है? Meridians are parallel, they are parallel, these considered parallel, ठीक है। यहाँ यदि रम्ब लाइन ड्रॉ करेंगे, these all ये जो एंगल्स हैं they are same, ठीक है। रम्ब लाइन, is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. On a sphere, the shortest distance is a great circle. Okay, let's go back. Shortest distance between 2 points on the Earth's surface, shortest arc of the great circle passing through those 2 points. When following a great circle, the ship has to alter her course continually. Continuously, she has to alter every minute. Because what happens? Great circle cuts all the meridian at different angles. But
प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं. You steer a course, अब हर 2 मिनट 10 मिनट के बाद if you alter, but then so what is the convenient way to sail on a place is follow a rhumb line track. एक course हम that is the best way. तो rhumb line सर cuts आपकी all the आवाज meridian बीच बीच at में the कट रही है. same. हाँ जी, आवाज कट रही है. बीच बीच में Yes, आवाज sir. कट यस जा रही है सर, सर सर आपकी. बहुत ग्लिच हो रहा है सर. एक मिनट रुको, let me change the. एक मिनट, just hold on. Let me go on the. Ooh. I'm back. Sorry, वो थोड़ा चेंज और करने में मैं हॉटस्पॉट पे आ गया हूँ. प्रॉब्लम बहुत दूसरा भी. Anyway, now you can hear me clearly. आपको आवाज आ रही है? यस सर. Okay, now let me go. Yes, sir. So, as I said, कि when you talk about great circle sailing, when you great circle sailing, you have to alter course every time. Continuously you have to alter course. Because, as I said, the great circle cuts all the meridian at a different angle. As you progress, you have to alter the course. But best way is rhumb line, because that is a convenient way for us. Because we can steer a steady course. The rhumb line cuts all the meridian at the same angle. Consequently, you land. This is rhumb line. ये rhumb line यहाँ से ये एंगल की, वही एंगल यहाँ, वही एंगल यहाँ, वही एंगल यहाँ. Eventually it lands. It is a curve on the surface of the earth. Okay. Rhumb line or loxodrome is a line on Earth's surface crossing all meridian at the same angle. So therefore, rhumb line is a convenient track to follow since the ship's course remains constant for the entire passage. हाँ, equator, all parallels of latitude are particular cases of rhumb line. मान लो आप यहाँ ईस्ट वेस्ट कोर्स आप स्टीयर करोगे, यू स्टीयर ईस्ट वेस्ट कोर्स हियर. यहाँ से ये ईस्ट वेस्ट कोर्स इक्वेटर है, यहाँ आपकी
That's it. Post. So these are particular cases of rhumb line tracks. Yeah, just hold on. ठीक है. So all parallel of latitudes are the meridians are the particular cases of the rhumb line as the coast. Okay. Then, as I said, you saw in the all the on the surface of the earth, all other except equator. Equator, of course, a great circle. Your parallel latitude, they are rhumb line. But any other rhumb line will be a curve spiraling toward the pole of the hemisphere. This is because meridians converge toward the pole. Just hold on. So, why any other? ठीक है, I'll quickly go through just for आपका refresh करना है memory, and then we'll go to detail. You understand? Okay. तो यहाँ पे कोई problem नहीं है. तो और जगह. Now see, this is a rhumb line. ये जो angle जो cut कर रहा है same. But a parallel latitude, it's not a problem because वो east west रहेगा. Okay. But any other rhumb line you draw other than the parallel latitude, equator is a great circle of course, but that you can steer a rhumb line track. Okay. Now, any other, it will spiral toward the pole like this. Okay. See, this is how rhumb line and always spiraling toward the pole. Yeah, this is great circle track. You draw a line. This is our part of the great circle. While this is rhumb line track. You see the figure. एक कर्व करते हुए तो क्या है कि rhumb line cuts all meridians at the same angle. Since these meridians converge at the pole, this spiral towards the pole, as you saw. Great circle is a straight line on a sphere. We use Mercator chart. The Mercator chart line just hello. I'm in class now. I'll call you. ठीक है. So on the Mercator chart, your meridians are parallel, they're non-parallel. So rhumb line cuts it. So on the Mercator chart, rhumb line appears as straight line as meridians on the chart are represented as straight line parallel to each other. Actually, you have a parallel line here. मान लीजिए ये आपका ये मेरिडियन है, ये मेरिडियन है, ये Mercator chart पे मेरिडियन है at equal distance, and then you have a rhumb line course, any course you draw, so this is a straight line. All these angles will be same. ये angle जो मान लो this is 50 degree, तो भी 50 degree, this is also 50 degree, this is also 50 degree. So rhumb line appears as straight line. ठीक है. Departure between two places is the east-west. Now pay attention. Departure is the distance between two places. East-west distance between them in nautical miles. When you say departure, is the east-west distance between 2 points in nautical miles. Okay. When they are at the same latitude, the distance along their parallel of latitude is departure. मान लो ये है. We go here. Suppose you want to measure. ये distance है 30 degree line. This east-west distance is the departure between मान लो ये point A है, ये point same latitude A and B. ठीक है. दो places के बीच में तो east-west distance is the while D long. Attention, D long. What is D long? Can anybody tell me? अभी तक कर ये इतना याद होगा आप लोगों को. बताइए. The difference between the longitude of the two places. Angle between the at the pole between the
between, बताइए, what is Two D long? longitudes. The angle at Angle the at the pole contained between two long the axes meridians of two position. places. Or arc of equator. You can also say arc of equator. Angle at the pole or arc of equator contained between the meridians of two places. D long. ठीक है? So remember, departure is a distance. D long is the angle. Okay. ठीक है? That departure is the distance. Now here at the equator, departure will be same as the D long. यहाँ the departure will be equal to D long. Departure is equal to D long. यहाँ at the equator. But any other place, it is not so. Only at equator. Only at equator, departure will be equal to D long. Any other place, no. Okay, so departure at any place, because see, it is maximum equal to D long. At the pole, what is the departure between two places? Zero. Between two meridian will be zero. The departure between two meridian at the pole will be how much? जवाब दीजिए. Sir, zero. Zero होगा ना, zero. तो maximum to zero. So from 0 latitude to 90-degree latitude varies as cosine of latitude. So see, this departure varies as cosine of latitude. So d log into cosine of latitude will give you the departure. आपको यहाँ 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे लेना, 30 डिग्री साउथ पे लेना हमको डिपार्चर. क्या करेंगे? यो डी लॉन्ग इस मान लो इसका डी लॉन्ग है हमको लेट्स से कि 150 to 120, लेट्स टेक मान लो 1 डिग्री डी लॉन्ग, लेट्स टेक 1 डिग्री डी लॉन्ग. तो कन्वर्ट करो मिनट में 60 मिनट. तो डी लॉन्ग इनटू कॉज ऑफ 30 कितना दे रहा है? यू गॉट कैलकुलेटर हियर, कैलकुलेटर. ओके, जस्ट और 60 डिग्री पे देखिए. तो डिपार्चर मान लीजिए डी लॉन्ग इज 60 मिनट इनटू कॉज ऑफ 30 डिग्री करके देखिए कितना 51.96. बट आप 60 डिग्री पे जाइए. 60 मिनट डी लॉन्ग इनटू कॉज ऑफ लैटिट्यूड 60 डिग्री कम टू 30. तो एज द लैटिट्यूड इंक्रीज द डिपार्चर डिक्रीज. ओके, ये तो हुआ पैरेलल. उसमें हम कैलकुलेट कर, मान लो आपको बीच में यू वांट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस on the same latitude, we find the d long, we know the latitude. Departure upon d long is equal to cos of latitude. Agree? Yes, sir. Okay, Yes, just sir. refresh कर रहे हैं, आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हैं just. तो departure on the same latitude. कहीं भी जानना है आपको, you know the d long, you know the latitude, we can get the east-west distance between two places if they are on the same. But suppose they are at different places. तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हाउ विल यू नो? तो उसमें हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं? सर मीन लैटिट्यूड लेते हैं. मीन लैटिट्यूड है मिडिल लैटिट्यूड, बट वी टेक मीन लैटिट्यूड. ओके, व्हाट इज मिडिल लैटिट्यूड? एट विच द ट्रू डिपार्चर लाइज. एट विच द ट्रू डिपार्चर लाइज. इज दैट करेक्ट? तो वी कैन सपोज वी वांट टू नो द when two places are different latitude, departure between them will be smaller than the स्मॉलर. ना समझ, एक प्लेस यहाँ है, एक प्लेस यहाँ है. ओके, नाउ एक प्लेस यहाँ है और एक प्लेस यहाँ बी यहाँ. तो यहाँ दिस इज द डिपार्चर हियर एट प्लेस ए. सपोज ये बी यहाँ होता एट द लैटिट्यूड ए, तो देन दिस वुड बीन डिपार्चर. और एट बी लैटिट्यूड बी, दिस विल बी डिपार्चर बिटवीन टू मेरिडियन. दिस इज रम्बलाइन ट्रैक. दिस इज रम्बलाइन ट्रैक. दिस इज रम्बलाइन ट्रैक. ये रमलाइन ट्रैक है. ओके, तो दे डिपार्चर, लेकिन योर डिपार्चर बिटवीन ए एंड बी लाइज समवेयर इन बिटवीन, यहाँ कहीं बीच में है. वी कॉल मिडिल लैटिट्यूड. वी कॉल मिडिल लैटिट्यूड. ठीक है, बट वी टेक अ मीन बिकॉज देयर इज हार्डली एनी एरर बिटवीन द, देयर इज एनी अप्रिशिएबल डिफरेंस बिटवीन द डिपार्चर
एज कैलकुलेटेड फ्रॉम मिडिल लैटिट्यूड और मीन लैटिट्यूड क्या है, दोनों लैटिट्यूड का मीन ले लिया. If the latitudes are located in the same hemisphere, the position located same here, add them together, divide by 2. Sorry, add them together and divide by 2. Okay. If they are located in different hemisphere, then what do you do? How do you find the mean latitude? बताइए. मान लो लैटिट्यूड इज, एक है 20 डिग्री नॉर्थ, दूसरा है 30 डिग्री साउथ. फाइव डिग्री. कैसे कैसे जो लार्जर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू निकाल करके डिवाइड बाय 2. ओके, तो वी गेट द मीन लैटिट्यूड एंड वी यूज डिपार्चर अपॉन, नाउ वी मॉडिफाई द फार्मूला एंड बिकम डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज कॉज ऑफ मीन लैटिट्यूड. ठीक है, तो सपोज देयर इज अ पॉइंट हियर, यहां से यहां जा रहे हैं हम, ये पॉइंट ए है, हमको चाहिए, मान लो हम, ये कोर्स है हमारा, कोर्स इज दिस वन, ये आपका कोर्स है, ये डिपार्चर है, डिपार्चर. ओके, थोड़ा ये डिपार्चर, दिस इज डीलेट, इजंट इट, दिस इज बी, ये डीलेट है ना. तो डीलेट कैसे ले, डिफरेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड. If the both the latitudes are located in the same hemisphere, you subtract the smaller one from larger one and name it. How you are going? Now, मान लो 20 degrees north to 20 degrees south, 20 degrees north to 30 degrees north जा रहे हो, तो क्या करोगे? Your direction will be north. This will be north. But if you are going from 30 degrees to 20 degrees north, तो हमारा ये south हो जाएगा direction. But if you are going for to higher latitude, अब इन सेम hemisphere वही नाम रहेगा. If you are going in lower latitude, from higher to lower in a same hemisphere, so it will be named the opposite of the hemisphere. मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ जा रहे हो तो आप साउथ जा रहे हो, आपका डीलेट होगा साउथ. एक डिफरेंट हेमिस्फीयर में है, तो जिस हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में जा रहे हो, दैट विल बी डायरेक्शन. मान लो 30 डिग्री साउथ होता तो आपका डीलेट होता, दोनों को जोड़ दोगे 50 डिग्री. ठीक है, डीलेट. नाउ वी रिक्वायर डी लॉन्ग. मान लो ये कोर्स है, वी रिक्वायर डी लॉन्ग. दिस इज अ ट्रायंगल, ये कोर्स है, तो डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू tan कोस. डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू, देखिए, डी लॉन्ग इज इक्वल टू, सॉरी, डिपार्चर अपॉन डी लेट इज इक्वल टू tan कोस. माय मिस्टेक, माय डिपार्चर अपॉन डी लेट इज इक्वल टू tan कोस. ठीक है, डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉज ऑफ मीन लेट. तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड द डी लेट एंड डिपार्चर. कैसे मालूम करते हैं, हमको कोर्स मालूम है, तो हम क्या करेंगे, हमको डी लेट मालूम करना है. डी लेट मालूम कर लिया हमने. कैसे मालूम किया हमने डी लेट, ये दोनों पोजीशन के डिफरेंस निकाल लिए. ठीक है, डी लेट मिल गया, है कि नहीं. और यू कैन कैलकुलेट डी लेट इज इक्वल टू डिस्टेंस. दिस इज योर डिस्टेंस. ध्यान दीजिए एक मिनट थोड़ा, ये आपका डिस्टेंस है, सॉरी, ये दिस इज राइटिंग, हाँ, ये आपका डिस्टेंस है. ये एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ. ओके, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी. मान लो ये कोर्स है. ओके, दिस इज योर एंगल कोर्स, दिस इज डिपार्चर, ये डी लेट है. ओके, so this depart between A to B you are going, this is course. So departure upon D let, this is your distance, ये course है. तो क्या हुआ, departure upon D let
इज इक्वल टू tan cos। ये एंगल है, ये 90 डिग्री। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड डिपार्चर। सपोज यू आर गोइंग अक्रॉस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कोस है, वी कैन फाइंड द डिपार्चर इज इक्वल डी, पहले डी लेट इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू cos of cos। Departure is equal to distance into sine of cos। Okay, now how this course should be in quadrantal form। आपका जो कोर्स है, कोर्स है, वो जो फिगर है, कोर्स इज ऑलवेज फ्रॉम द मेरिडियन, फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट ऑफ द मेरिडियन। उसको हमको क्वाड्रेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू, दिस इज मेरिडियन, दिस इज योर, ओके, दिस इज व्हाट विल द कोर्स हियर, बताइए, जस्ट इंटरैक्ट, व्हाट विल द कोर्स हियर? 0 0 0, ये 180, ये 90, ये 9327। ये एक कोर्स है ना, वी फॉलो दिस कोर्स। तो जो 3 फिगर नोटेशन, इसको क्वाड्रेंटल कोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हाउ डू वी डू? रेफरेंस इज ऑलवेज मेरिडियन, ऑलवेज मेरिडियन, ये मेरिडियन विल बी द रेफरेंस। ओके, ओके, क्वाड्रेंटल कोर्स में कैसे कन्वर्ट? इफ द कोर्स लाइज बिटवीन 0 to 90, इसके बीच में कहीं यहाँ, और 270 to 00 और 360, यहाँ इस एरिया में है। ओके, तो व्हाट यू डू, आपको जो कोर्स है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड, दिस इज अ मेरिडियन, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, वी आर इंटरेस्टेड, ये मेरिडियन है तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉट एवर द कोर्स इज, यहाँ से कोर्स माइनस 0 0 विल गिव यू, जैसे मान लो ये कोर्स इज 050, तो कोर्स विल क्वाड्रेंटल फॉर्म में क्या होगा, 50 minus 0 0 will give you north। Now remember, always references from the meridian, right? You will write north। कितना है? 50, डिफरेंस है 50। एंड किस डायरेक्ट, किस उसमें है? ईस्ट में। See, east of the, this is east of the meridian, east side। पहले आएगा what is the reference, what meridian का which part, north part or south part you are referring 0 0 0 180। So if the course is above this east west line, मान लो कोर्स है यहाँ 315, हमको ये एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द मेरिडियन यू आर टेकिंग, नॉर्थ साइड 0 0 0 ले रहे हो, राइट नॉर्थ। डिफरेंस क्या होगा, 0 0 को 360 माइनस 315 कितना हुआ, 45। एंड विच डायरेक्ट, विच, ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट ऑफ दिस। So when you say north 45 means 45 degree west of the meridian, okay, from the north point। Okay, when the coast lies between 90 to 270, इसके बीच में यहाँ कहीं 90 to 270, we will take the 180 south end of the meridian, and वहां से मान लो we are, ये my course है say 140, okay, we are interested in this angle with reference to meridian, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 140 घटा देंगे, क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा that is 40। you will पहले prefix it with the south because you have referred the 180 degree of the meridian, south of the south end of the south, which side, east। okay, we require to convert the coast into quadrantal form। ठीक है, मान लीजिए आपका कोर्स यहाँ, मान लो है 260, विच कोर्स कितना है बताइए, 260 क्या क्या लिखेंगे बताइए, व्हाट कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेंटल, 260 डिग्री ट्रू कोर्स, ट्रू कोर्स 0 to 0 south westerly। नहीं, आप इसको कैसे लिखोगे, क्वाड्रेंटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट, 260 डिग्री ट्रू है, कन्वर्ट करो, पहले क्या प्रीफिक्स क्या आएगा, minus 180 degrees। हाँ, माइनस कितना आएगा, साउथ 80 डिग्री वेस्ट,
Now 30 degree west, sir. We have to convert because we are interested in this angle. Which angle? Angle from the meridian toward the course. Angle from the meridian toward the course. Is that clear? ये आपको कराया होगा, but मैं refresh कर रहा हूँ ये memory. Is that clear? Yes, sir. Okay. So once we have got this D-let departure, हमको we know that हमको ये आपको डिस्टेंस हमने निकाल दिया है. ठीक है, तो आपको डिपार्चर D-let. नाउ वी कैन गेट द व्हाट इज द तो मान लीजिए यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यू आर गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. ओके, यू आर गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. ठीक है, मान लो प्लेस ए टू प्लेस बी है गोइंग. ठीक है, ए बी. तो आपका कोर्स ये है, जो भी मान लो दिस इज मेरिडियन, दिस इज योर कोर्स. So we will convert into quadrantal course. ठीक है, Quadrantal course. ठीक है, quadrantal course में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो ये कोर्स है आपका, लेट्स से यू आर स्टीयरिंग 150 डिग्रीज. ओके, डिस्टेंस इज से 50 माइल्स. वी नो दिस पोजीशन. मान लो ये है 20 डिग्रीज नॉर्थ, ओके, 40 डिग्रीज वेस्ट. मान लो ये पोजीशन. ओके, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द D-let एंड डिपार्चर. वी रिक्वायर D long. वी रिक्वायर D long. D long के पहले, बिकॉज ये प्लेन सेलिंग हम कर रहे हैं, आपने किया हुआ है प्लेन सेलिंग में, तो हम पहले क्या है D-let और डिपार्चर मानो. तो D-let इज इक्वल टू, ये आपका कोर्स है, ये आपका डिपार्चर है, दिस इज योर डिस्टेंस 50 माइल, एंड ये D-let है. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, यू फाइंड D-let. तो D-let इज इक्वल टू हाउ मच, वी नो दैट D-let ये आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इनटू कॉस कोस. बताइए कितना है, 50 माइल डिस्टेंस है, 50 इंटू कॉस कोस कितना हुआ, कॉस ऑफ, कन्वर्ट इनटू, पहले इसको कन्वर्ट इनटू 3 क्वाड्रेंटल फॉर्म. तो 150 कितना हुआ, साउथ Cos 30. 43 डिग्री 30 में. तो कॉस 30 निकाले, क्या वैल्यू आई कैलकुलेटर से, So 43.3. 43.3. ओके, लेट्स से 43.3. नॉर्थ साउथ, हमारा कोर्स क्या है, साउथ. Sir, south. Southwest. Then we will find the departure. Let's find the departure. Departure formula is distance. देखिए, distance into sin cos. क्योंकि departure upon distance is equal to sin cos. आप देख लीजिए, departure upon distance to sin cos कितना है, बताइए, वैल्यू निकालिए. Distance is 50 miles into sin 30 degrees. 25.0. 25 miles east or west? East. You see the course. आप कोर्स देखेंगे, कोर्स इज prefix with south, the D-let will be south. Prefix with north, it will D-let will be north. Then you see the suffix for departure. Departure, if the course is suffixed by east, departure will be east. If suffixed by west, departure will be west. Okay. Now departure upon D-let is a tan cos. आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वैल्यू. देखिए कितना आपको कोस 30 डिग्री है, डिपार्चर कितना है 25 डिवाइड बाय D-let 43.3 इज इक्वल सो मच इनवर्स tan. वो 30 डिग्री आया कि नहीं, आपको कैलकुलेटर करके देखिए, आ रहा है कि नहीं. इज दैट क्लियर?
तो हम क्या करते हैं, पहले डिपार्चर, सपोज यू वांट टू नो द पोजीशन ऑफ पॉइंट, प्लेस है, हमको मालूम है 20 डिग्री 40 मिनट्स है, तो हम क्या करेंगे, मैं एक थोड़ा करके बता दूं, थोड़ा आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। तो दैट इज, हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ, पोजीशन का हमने लिया था 20 डिग्री 40, पोजीशन ऑफ ए कितना है, लैटिट्यूड 20 डिग्री 00 मिनट्स, नॉर्थ था, नॉर्थ 040 डिग्री 00 मिनट्स, वेस्ट। ओके, हमारा डीलेट क्या है, डीलेट कितना आया था, 43.3 साउथ, ये ना 43.3 साउथ आया था ना। Yes, sir. Yes, sir. हम यहाँ लिखेंगे 43.3 मिनट्स साउथ। हमको यहाँ डी लॉन्ग, नाउ रिमेंबर, याद रखिए ये चीज, डिपार्चर डिस्टेंस and as a d long we said, as we discussed, d long is the angle at the pole contained with the meridian between two places. So can we use departure here? No, we must know the d long. तो हमारे पास तो डिपार्चर है, but as I said, the departure between two places located at different places, different location, lies in the middle of these two. So we calculate departure upon d long is equal cos of mean let. So if we have mean let, we not get d long? डिपार्चर हमारे पास है, डिपार्चर है यहाँ, डिपार्चर कितना है हमारे पास है, कितना है 25 है ना, 25 मिनट्स, हमको चाहिए डी लॉन्ग। तो इफ यू गेट अ मीन लेट, कैन वी नॉट गेट द डिपार्चर, बिकॉज वी नो डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉज ऑफ मीन लेट। तो व्हाट इज द मीन लेट, मीन लेट निकालिए, पहले यहाँ लैटिट्यूड पहले निकालो, पहले लेट अस फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ बी इक्वल टू लैटिट्यूड, कितना इसमें माइनस करो, 20 डिग्रीज में से 00 डिग्री 43.3, 20 डिग्रीज माइनस 00 डिग्रीज 43.3 कितना है, 19 16.7, 19 डिग्रीज 16.7 मिनट, बिकॉज आपका लैटिट्यूड नॉर्थ है या डी लाइट इज साउथ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि ये भी आपको बताना पड़ेगा। इज इट ओके विद यू, ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रीकर्सर टू डेज वर्क, तो इसीलिए ये आपको मीन लैटिट्यूड निकालिए, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 करिए, कितना आ रहा है 20 डिग्रीज प्लस 19 डिग्रीज 16.7 मिनट्स डिवाइड बाय 2, 19 डिग्री 38.3, 19 डिग्रीज 38.3, तो आपका डी लॉन्ग क्या होगा, डी लॉन्ग बताइए क्या होगा, निकालिए। मीन लेट आपके पास है, डिपार्चर डी लॉन्ग इज कॉज ऑफ मीन लेट, तो डी लॉन्ग क्या होगा, डिपार्चर डिवाइड बाय कॉज ऑफ मीन लेट, निकालिए कितना आ रहा है, डिपार्चर कितना है हमारा, कितना था डिपार्चर 25, 25 डिवाइड बाय कॉज ऑफ मीन लेट, कॉज ऑफ 19 डिग्रीज 38.3 मिनट, आप भी कैलकुलेट में कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज वी रिक्वायर, कितना आ रहा है बताइए, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है भाई, फार्मूला क्या है, डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉज ऑफ मीन लेट, ये ना, तो डी लॉन्ग किसके बराबर होगा, निकालिए। Sir, 0 degree 26.5 minutes.
26.5 minutes ईस्ट Yes, और sir. वेस्ट, East. ईस्ट जो, East, sir. हाँ East, ईस्ट, sir. जो डायरेक्शन डिपार्चर के वही डी लॉन्ग की। ओके, यहाँ ईस्ट है तो ये भी मतलब 25 पॉइंट कितना बोला, 26.5 26.5. 5 ईस्ट। अब हम यहाँ लगा देते हैं। रिमेंबर departure the distance, d long is the angle, we will apply d long here at the longitude to get that position. तो d long कितना है, हमारा लॉन्गिट्यूड क्या होगा अराइवल भाई, you are going, your d long is 40, longitude is 40 degrees west 00, d long is 26.5 minutes east, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए 40 डिग्रीज माइनस 0 डिग्रीज 26.5 मिनट्स 39 डिग्री 33.5 039 degrees 33.5 minutes. Yes. Okay, is that clear? ये आप, Yes, sir. okay, तो आपको how to, we will use the meanlet. Remember to get a position what we have to do, कोर्स दिया हुआ है आपके पास, तो हम उससे डीलेट और डिपार्चर मिले, बिकॉज इट्स प्लेन ट्रायंगल, we will not get d long. What we'll get? We will get delet and departure. जैसे हम देखा, we get delet and departure. Having obtained the delet, apply delet to the position. You will get the latitude of the arrived position. Okay. We require the longitude of the arrived position. We cannot put departure. हम क्या करेंगे? We will find the mean latitude. Okay. We will find the mean latitude. Okay, having found the mean latitude, we know departure upon d long is equal to cos of mean latitude, ये आपने किया हुआ है। Okay, तो departure upon d long cos of mean latitude, तो हम क्या करेंगे, we have departure, तो d long is equal to departure divided by cos of mean latitude, and we'll put to get the, once we apply the d long, we get the longitude. ये बात clear हो गई? Any confusion in this? जवाब दीजिए ना, प्लीज आंसर। नो सर, नो सर, नो No, ये sir. सर। No, sir. हो गया ये बात। ओके ओके, ये तो हमने एक कोर्स की बात की, ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट ओनली वन कोर्स। नाउ लेट्स गो टू द, ये अभी ये भी ये फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। हमको क्या करना है, कोर्स जो मिलेगा, सपोज कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ये डिस्टेंस दी है, फर्स्ट कन्वर्ट दैट कोर्स इनटू क्वाड्रेंटल कोर्स। क्या करोगे, you will convert that course into quadrantal course. How will you convert? We will refer to the, if the angle lies, if the course lies between 0 to 90 or 270 to 360, we will consider 000 as reference or 360 as the reference. Okay, and what, when we convert into quadrantal course, we convert it with reference to the meridian, with reference to the meridian. And when you convert it with reference to the meridian, तो आप क्या करते हो उसमें, we go back to the with reference to the meridian. ये आपका meridian, तो मान लीजिए जो भी कोर्स है, तो we find out, ये मान लो this is depart, so first convert into the with reference to the meridian. If the course lies between 0 to 90 or 270 to 360, we consider 000. If it lies between 90 to 180 to 270, then we consider 180 as reference. But angle will always be with reference to the meridian. Okay, so this angle will be whatever the course is minus that 000 or 360 minus whatever so यहाँ है, so we will get this angle. A with reference to meridian, ये angle, इसमें 180 में से माइनस करने उस कोर्स को, तो विल गेट दिस एंगल। और इधर है तो वेस्ट में तो
उसमें से 180 माइनस करते हैं तो we'll get this. Once having obtained the course, okay, we know the course. This is know the distance. We can multiply. We can get DLAT. This is DLAT. This is departure. ये DLAT है. So we can get DLAT is equal to distance into cos of course. और departure is equal to distance into sin of course. ठीक है, तो हमको DLAT डिपार्चर बिटवीन A एंड B मिल जाएगा. ठीक है, वंस वी ऑब्टेन द DLAT डिपार्चर, तो A की पोजीशन आपने लिखी, A की पोजीशन उसमें DLAT लगा दिया, तो वी विल गेट द लैटिट्यूड ऑफ B. वंस वी गॉट लैटिट्यूड ऑफ B, वी विल फाइंड द मीन लैटिट्यूड. यहाँ लॉन्गिट्यूड भी है, वी रिक्वायर D लॉन्ग, तो मीन लैटिट्यूड वी नो द डिपार्चर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ मीन लैट विल गिव यू द D लॉन्ग, दैट D लॉन्ग. Is that clear? ये रिफ्रेश हो गया, आपने किया हुआ था. ठीक है, ओके. नाउ वी कम टू द डेज वर्क. ठीक है, ये आपको याद हो गया, इसमें कोई लेट मी गो टू डेज वर्क. ओके ओके, व्हाट इज डेज वर्क? पहले फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज डेज वर्क? सपोज यू आर नॉट गेटिंग ए पोजीशन, आपको पोजीशन नहीं मिल रही है, तो आजकल योर जीपीएस होता may happen that GPS has failed for some reason, some problem occurs, you are not getting position. Okay, so you need to estimate your position. So it is nothing but performance and progress of the ship on her voyage, which is determined from one known to the next known, ship's time. Okay, day's work is nothing but the performance of whatever progress you've done on your voyage from one known to the next known on daily basis. Okay. So suppose you have, now let's see, and I want your interact this thing to understand this. Suppose this is A. From place A you have moved this course. मान लो course है 150. Okay, 150. Suppose we are here. ये आप X पे आए हो. Okay, मान लो आए. So can you find the distance? Distance मान लो दिया हुआ इसका. Say distance is given, says 100 miles. Course is 150. I'm just taking arbitrarily एक figure ले लो. मानो ये course is 150. Course is 150 and distance is 100 miles. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? We can get the DLAT, we can get departure. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. One DLAT Yes, sir. departure मिल गया तो हमको we can apply and get this position say X. ठीक है, okay, understood? Okay, now suppose यहाँ से you went for another something, course is 120, distance is about say 150 miles. ओके, तो ये पोजीशन हमको मालूम है, इसमें फिर यहाँ से DLAT डिपार्चर लगाएंगे and we'll get a D long. Can we not get the position at Y? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. मान लें हमने एक और कोर्स कर, I'll come back to the basic. आपने कोर्स किया 070, hold on, 070, distance is say 60 miles. Again हम DLAT डिपार्चर, ये पोजीशन मालूम है, इसमें DLAT डिपार्चर. Now instead of doing all this, can you not accumulate all this DLAT together? DLAT जो यहाँ आया, DLAT यहाँ आया, और ये DLAT वहाँ आया, and we get the final DLAT from here to here. Possible or not? Instead of doing individually, इसको DLAT डिपार्चर में फिर पोजीशन निकाली, फिर यहाँ से यहाँ गए, इसका DLAT डिपार्चर निकाला, उसका पोजीशन निकाला, फिर यहाँ से यहाँ गए और उसका DLAT. Can we not accumulate this together? Yes or no? Yes, sir.
तो यदि हम सबका डीलेट निकाल करके add algebraically, we can get the final delet from here to say this position. Yes or no? Yes, sir. Likewise, departure भी हम सबका departure निकाल करके एक साथ algebraically add करते हैं, get the final departure. Then can we not get the final course? Sorry, course and this thing, final position. Can we not get the final position? Yes, sir. Okay. And suppose you want to know the course, so your course mate will be this one. From A to, मान लो आप यहाँ आए Z पे, तो कोर्स मेड गुड इज ऑल दिस, इसका जो ऐड करोगे तो आप ये कोर्स मेड गुड, ये डिस्टेंस मेड गुड है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ओके. मान लो साथ में करंट भी है, तो मान लो एक सपोज लेट मी टेक इट डिफरेंट, मैं आता हूँ. मान लीजिए कि हमारे पास ओके करंट 5 नॉट के हिसाब से करंट है, तो मान लो ये कोर्स आपने ये किया, 5 नॉट साउथ वेस्टर्ली करंट है, तो हमने साउथ वेस्टर्ली करंट यहाँ भी लगाया. ठीक है, तो हमको यहाँ से ये कोर्स हो गया, जैसे 150 माइल लिया था हमने, 150 डिग्री 100 माइल है, इसका डीलेट डिपार्चर लिया, और ये सब साउथ वेस्टर्ली है तो उसका भी डीलेट डिपार्चर ले लिया, तो वील गेट द पोजीशन आफ्टर से 150 माइल जो भी है विद द करंट यहाँ. फिर दूसरा कोर्स लिया, जो भी कोर्स दिया हुआ है, और फिर करंट लगाया. ओके, फिर हमको ये पॉइंट मिलेगा. फिर तीसरा कोर्स लगाया. तो इंस्टेड डूइंग सेपरेटली, कैन वी नॉट जॉइन दिस करंट टुगेदर? ये सबको एक साथ लेकर के और उसका डीलेट डिपार्चर निकाल दें. पॉसिबल और नॉट? यू क्यूमुलेट ऑल दिस जो करंट है एक साथ. मान लो 24 घंटे में आप चल के यहाँ, 1 मिनट लेट मी गो द, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए हमको. ये आपने ए से बी आए तो हमने इसको ले लिया, करंट अभी नहीं, अभी ये बी से मान लो ए से एक्स आए, एक्स से वाई, वाई टू जेड. नाउ ये 24 आवर्स का आपका है. अब आप करंट भी इसमें ऐड कर दीजिए. मान लो आपको करंट मालूम है, करंट को ओके सेट एंड ड्रिफ्ट, यू टेक द 24 आवर्स. मान लो सेटिंग एट 5 नॉट्स या 2 नॉट्स, लेट्स टेक 2 नॉट, 24 आवर्स में कितना होगा? 48 माइल. And setting at southwesterly, say northwesterly, let's take ये northwesterly होगा. Northwesterly हमने 48 माइल ले लिया. तो we have added all this together and this is your final B position. ये B position, arrival position, EB. Course and distance made good will be from A to B. इसमें किसी को डाउट है? नहीं. No, What we do? No, sir. हाँ, हमको वेरियस कोर्सेज एंड डिस्टेंसेस दे रहेंगे. भाई व्हाट वी कैलकुलेट फ्रॉम नोन टू नोन, व्हाट इज योर प्रोग्रेस. डिफरेंट कोर्सेज आप शेयर करो, व्हाट इज द फाइनल कोर्स मेड गुड और डिस्टेंस मेड गुड. ओके, तो हमको फाइनल डीलेट और डिपार्चर मिल गया. वी गॉट फाइनल डीलेट एंड डिपार्चर. ठीक है, तो यहाँ ऐड करने के बाद कैन वी नॉट गेट द कोर्स? फाइनल डीलेट और डिपार्चर मिल गया, कैन वी नॉट गेट द कोर्स मेड गुड? बिकॉज मान लो ये है आपका डीलेट, मान लो ये है ये कोर्स है, दिस इज डीलेट एंड दिस इज द डिपार्चर व्हिच यू मेड. तो डीलेट अपॉन डिपार्चर इज इक्वल टू व्हाट? डीलेट अपॉन डिपार्चर इज इक्वल टू व्हाट? The 10 course. 10 कोर्स. 10 course, sir. 10 कोर्स. तो हमको फाइनल ये कोर्स मिल जाएगा कि नहीं? कितना क्या कोर्स यू हैव एक्चुअली मेड गुड? कोर्स मेड गुड, though you have gone on various courses, you steered on various courses, but final course made good is this, the final delet, which is nothing but algebraic sum of these delets. The final departure, which is nothing but algebraic sum of this departure from the individual courses. That is cumulative. Okay, तो delet and departure हमको plan. Distance क्या होगा? Distance you know, departure distance क्या होगा? हमने डीलेट इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस इनटू कॉस कोस, और डिपार्चर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू साइन कोस.
तो हमको डिस्टेंस मालूम करना, तो डीलेट डिवाइडेड बाय cos cos will give you the departure or not, will give you the Yes, sir. distance or not. Okay. और likewise departure divided by sin cos will give you the distance or not. मिलेगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. मिल जाएगा ना? हाँ. Okay. तो ये अंदर. Now see we are going to use this. Now इसमें step by step हम लोग आगे बढ़ाएंगे. We'll go step by step. Intricacies बाद में. पहले simply करेंगे. पहले we will comprehend the whole concept of days work. Okay. It is question number 5 of terrestrial and coastal naval TNC navigation is days work. ठीक है. Now you understood. हमको वेरियस कोर्सेज दिए रहेंगे, डिस्टेंसेस दिए रहेंगे, ओके, इन वन फॉर्म और अदर. ओके, हमको पोजीशन दी रहेगी, अराइवल पोजीशन, डिपार्चर पोजीशन. ओके, एंड व्हाट विल डू, फर्स्ट वी विल फाइंड द डीलेट एंड डिपार्चर ऑफ ट्रू कोर्स स्टीयर्ड. दे मे हैव गिवन यू कंपास कोर्स. तो कंपास कोर्स को पहले वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ट्रू कोर्स. ट्रू कोर्स से ट्रू कोर्स को विल कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेंटल कोर्स. क्वाड्रेंटल कोर्स लगा करके एंड डिस्टेंस से वी विल गेट डीलेट एंड डिपार्चर फॉर इंडिविजुअल कोर्सेज मेड गुड कोर्स स्टेट, सॉरी, इंडिविजुअल कोर्सेज. देन वी विल गेट अ क्यूमुलेटिव डीलेट. we'll add up all delets algebraically. The final delet we'll get. We'll add up all departure algebraically and get the final departure. So having obtained that, we can get that course. You know, delet upon departure is equal to tan course. ये आपका कोर्स है, ये कोर्स है, ये कोर्स मान लो कोर्स है जो भी है, ये आपका डीलेट है, ये डिपार्चर. सॉरी डीलेट है, आपका कोर्स ये है. एक मिनट, क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन डिपार्चर, सॉरी डिपार्चर अपॉन डीलेट, मैं खुद ही गलत बोल रहा हूँ. डिपार्चर अपॉन डीलेट, ध्यान दीजिए, डिपार्चर अपॉन डीलेट, ये गलती मत करना. डिपार्चर अपॉन, ये कोर्स है, ध्यान दीजिए, कोर्स ऐसे ड्रॉ करके देखिए, ये कोर्स है. बेस कौन सा है, डीलेट और डिपार्चर? बेस क्या है, बेस क्या है बताइए? डीलेट. Third delat. डीलेट बेस है. ओके, और परपेंडिकुलर कौन सा है? Departure. तो आपका ये गलत लिख दिया, डिपार्चर अपॉन डीलेट. ध्यान रखिएगा, तो यदि आपने डीलेट अपॉन डिपार्चर लगाया तो गलत है, आपका तो नंबर कट जाएगा सीधे. तो आप कभी कंफ्यूजन हो, ड्रॉ द फाइल, वी नो दिस एंगल, तो बेस ये होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, डिपार्चर ये. तो डिपार्चर अपॉन डीलेट इज इक्वल टू, आप ऐसे देखो ना, व्हाट इज डिपार्चर? डिस्टेंस इनटू साइन कोस है ना. व्हाट इज डीलेट? डिस्टेंस इनटू कॉस कोस. इसको मान लो, इसको दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या होगा? डिपार्चर, ये इसको कट जाएगा, डिपार्चर डीलेट होगा. डिपार्चर अपॉन डीलेट इक्वल टू tan कोस. होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आपको जहां कंफ्यूजन, तो मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, इसलिए दिमाग से उतर गया. आपने जो बोला मैंने लिख दिया. बट रिमेंबर, ऑलवेज ड्रॉ, हम सीधे जानते हैं, डिपार्चर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू साइन कोस. डीलेट इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू कॉस कोस. दोनों को डिवाइड करने का, तो डिपार्चर अपॉन डीलेट इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कट गया, दिस इज इक्वल टू tan कोस. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक और चीज है, another thing I would like to tell you, जो कि आपको कराया हुआ शुरू में, बट जस्ट टू रिफ्रेश योर माइंड. वेरिएशन एंड डिविएशन. ओके, दिस इज ट्रू नॉर्थ, this is true north. Okay, now variation is, what is variation? What is variation?
variation at any place is the angle between the your geographical meridian and the The magnetic true meridian and magnetic meridian. ओके तो मान लो आपका ये है, इसका मतलब आपका कंपास नीडल विल बी पॉइंटिंग दिस वे। मान लो कंपास नीडल विल पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। मान लो 5 डिग्रीज वेस्ट है, 5 डिग्रीज वेस्ट मींस your needle lies or magnetic meridian lies 5 degrees west of the true geographical meridian. Okay, now pay attention. ये आपका 0 0 0 है ट्रू, ये है 355 डिग्रीज ट्रू। कंपास क्या रीड करेगा? यदि नीडल इज पॉइंटिंग हियर तो मैग्नेटिक कोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक कोर्स क्या होगा भाई? ये पॉइंट नीडल ऐसे पॉइंट कर रही है, इस डायरेक्शन जा रहा हो, नीडल मैग्नेटिक कोर्स क्या है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ पॉइंट कर रही है। व्हाट विल मैग्नेटिक कोर्स? इट विल बी मैग्नेटिक, इट विल पॉइंटिंग टुवर्ड मैग्नेटिक नॉर्थ। तो वहां 0 0 0 दिखा रही है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, और है कितना? 355, 5 डिग्री टू वेस्ट। इसका मतलब रीडिंग है वो ज्यादा दिखाएगी। रीडिंग जो कंपास विल शो मोर। क्यों? वेस्ट में तो ये नीडल यहाँ पॉइंट कर रही है तो इट इज शोइंग 0 0 0 मैग्नेटिक। होना चाहिए 355 डिग्री टू। तो ये 5 डिग्री बिकॉज द नीडल लाइज, मैग्नेटिक मेरिडियन लाइज 5 डिग्री टू द वेस्ट ऑफ द geographical meridian, the true meridian. So what will happen? The needle will point the magnetic north of towards the magnetic north. तो ये needle will show 0 0 0. but actually है क्या? 355 डिग्री। तो हमको इसे ना कंपास बेस्ट एरर वेस्ट, तो हमारा कंपास एरर हुआ 5 डिग्री। इसे हम यहाँ वेरिएशन की बात कर रहे हैं, वेरिएशन 5 डिग्री वेस्ट। ओके, मान लो नीडल वाज पॉइंटिंग दिस वे 5 डिग्रीज ईस्ट, तो कंपास क्या पढ़ेगा? 0 0 0 है कितना? 0 0 5। नाउ इट इज रीडिंग लीस्ट बाय हाउ मच? बाय दैट डिफरेंस 5 डिग्री। तो कंपास लीस्ट एरर ईस्ट, वेरिएशन विल बी 5 डिग्री। So in the case to get a true, okay, to get the true bearing or true कोई भी डायरेक्शन, जो भी आपकी बेयरिंग हो, जो भी कोर्स है, कोर्स ट्रू कोर्स क्या करोगे? मैग्नेटिक से ये 5 डिग्री वेस्ट जो भी है घटा दोगे तो यू विल गेट ट्रू। यदि ईस्ट है तो 5 डिग्री ईस्ट ऐड कर दोगे टू गेट द ट्रू कोर्स। ओके, आई थिंक हो गया। 10 बज गया। I have got a next sir. class with you. We'll continue from there before we speak the question on day's work. क्योंकि ये concept बिल्कुल clear होना चाहिए, ये concept बिल्कुल clear होना चाहिए। Delet departure, we know we'll take out delet, we'll find departure. Departure upon delet is equal to tan cos. Departure देख वो draw करके देखिए डायग्राम। Departure upon delet is equal to tan cos, cos मिल जाएगा। ओके ठीक है। डिपार्चर कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इनटू साइन कोस। डीलेट कैसे लेंगे? डिस्टेंस इनटू कॉस कोस। और उसी ट्रायंगल से हम सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, वील गेट द डीलेट। सारे डीलेट को जोड़ दिया एल्जेब्रिकली, सारे डिपार्चर को जोड़ दिया एल्जेब्रिकली, वी गेट द फाइनल डीलेट एंड फाइनल डिपार्चर। उससे डिपार्चर अपॉन डीलेट विल गिव द कोर्स मेड गुड। डिस्टेंस मेड गुड कैसे होगा? डिपार्चर अपॉन साइन कोस और डीलेट अपॉन कॉस कोस, वील गेट द डिस्टेंस। So eventually we are getting the position. Position कैसे मिलेगा? आप will apply that delet and departure delong convert करके उससे हम final position ले लेंगे, whether it's DR position or estimated position. ठीक है? तो we will continue with this in the 4th class when we have. ठीक है? चलो let's stop here and I'll come back to you. Thank Any you, question? sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. कुछ any कोई doubt, कुछ ऐसा problem? Because before we take a question, हमने थोड़ा ब्रश कर दिया कि व्हाट इज डीलेट डिपार्चर एंड देन अकॉर्डिंगली वी गो, फिर हम अप्लाई करें। एक चीज है, फार्मूला हर क्वेश्चन का लिखेंगे, आप चेक कर लेंगे क्यों गलती, जैसे कि हमने अभी गलती की तो
लिख करके चेक वेरीफाई, याद रहेगा वो तो बात, वैसे एज वी प्रैक्टिस हमको याद हो जाएगा। ठीक है, Yes, Okay. sir. Thank you, sir. चलो Yes, sir. ठीक है, Thank थैंक यू। you, sir.